As we moved towards the eastern part of the Indian mainland, we reached the Andaman and Nicobar Islands. These islands are world famous for its breathtaking views and beautiful beaches. It also has one of the world's dense rainforests, as well as aquatic flora, which is a home for the highest number of endemic bird species in India. The journey to explore these endemic birds was quite amazing. Andaman woodpecker is a large, unmistakable black woodpecker with a red crest. It has long, dark bill and strikingly pale eyes. It basically found in mangroves and evergreen forests. Andaman flowerpecker is a tiny bird with a slim, dark, curved bill. The upper parts are olive green, and the pale underparts have a smudge of yellow on the belly. Andaman cuckoo is a large, pale brown, ground-dwelling bird with rusty wings and back. It skulks in bushes and low cover, where it moves clumsily, as it searches for small invertebrates, small mammals, and birds to prey on. White-headed starling is a distinctive bird with a white head, white breast, and grey back. It has yellow legs and a pale bill. Starling's outer tail feathers and lower back are grayish-white on birds in the Andamans, and reddish-brown on birds in the Nicobar Islands. Andaman teal is a small brown duck with a pale throat and scalloped plumage. The face is sometimes all white, but always has a white eye ring. Andaman teal is quite gregarious and likes to gather in marshy water bodies. Andaman bulbul is a plain, rotund bird with a dark forehead, face, and throat. The upper parts are greenish, and a dark olive edges to the wings, and the dark tail band. Andaman cuckoo shrike is a stocky, medium-sized bird with a heavy, dark bill. It is similar to large cuckoo shrike, but the Andaman cuckoo shrike is slightly smaller, slimmer, and darker grey on the upper parts. Hume's hawk owl is a medium-sized, dark brown owl with distinctive yellow eyes. Andaman crake is a relatively large, rust-colored bird with a pale bill and barred black and white underparts. It's basically very shy and skulking in dense woodland, where it forages on the wet forest floor. Narcondam hornbill is a small hornbill with a black body, a white tail, and a strong pale bill with a flat, grooved casque on top. It is one of the rarest birds of the world and found only on Narcondam Island. Nature at the best has traveled length and breadth of the Andaman and Nicobar Islands. During our journey, we are amazed to see different birds, unexplored beaches, beautiful islands, lush green creeks, and untouched marine biodiversity. Well, that video on endemic birds of the Andaman has been supplied by Shri Vinay Kumar Jindal, who is serving as a sub-divisional magistrate at Vasant Vihar and was also serving as an SDM in the Andaman Islands as well. Remember, there's a distinction between Andaman and the Nicobar Islands. The Andaman Islands is accessible to tourists, for instance, but the Nicobar Islands are not. And to learn more about this, let's ask our special guest. A warm welcome to you, sir, on the Doordarshan Morning Show. सर बहुत-बहुत स्वागत है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आपने हमें यहाँ बैठे-बैठे पूरे अंडमान्स के दर्शन करा दिए. इतने सुंदर-सुंदर बर्ड्स हमने देखे. तो इतनी खूबसूरत हमें ये चीज़ देखने में लगी. आपने तो इसको जिया है. यू आर ऑल्सो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. तो आपकी अंडमान जर्नी कैसी रही? मैं ये कहूँगा कि ये मौका किसी किसी को मिलता है जी. तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी सरकार का. मैं
एक छोटी सी लाइन बोलता हूँ इसके लिए हमेशा कि प्रोफेशनली मैं सिविल सर्वेंट हूँ और पैशनेटली मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। तो अंडमान एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे प्रोफेशनली और पैशनेटली दोनों परस्यू करने का मौका मिला। जी। और प्रोफेशनली रहते हुए वहाँ पे बहुत सारी जगह पे सर्व करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म में ही था अंडमान में एज ए डिप्टी डायरेक्टर। देन आई शिफ्टेड टू ट्रांसफ़र टू निकोबार डिस्ट्रिक्ट। जो आपने अभी कहा कि अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग हैं, तो अंडमान में एक 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और निकोबार अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो मुझे निकोबार में सब करने का मौका मिला एज ए सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट देयर। निकोबार से जब वापस फिर अंडमान आए तो पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारी पोस्टों पे रहे। वहाँ पे डायरेक्टेड रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल वेलफेयर, अर्बन लोकल बॉडीज़। आल्सो लास्ट में वहाँ पे जो पोर्ट है हमारा, सब लोगों ने सुना कि अंडमान पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो मुझे मौका मिला वहाँ पे एज ए चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर सर्व करने का। तो सर ये बताइए कि वाई बर्ड्स, वाई ये बर्ड्स के साथ रुचि क्यों है? आई नो यू हैव डॉक्यूमेंटेड अ ग्रेट डील in your book with your wife as well, this coffee table book, but why birds? बर्ड्स में एक यूनिक अट्रैक्शन है जी, जो मुझे फील होती है वहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो उनकी बहुत स्पीशीज़ हैं दुनिया भर में। अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो 11,000 के आसपास स्पीशीज़ हैं जो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं। तो बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो इससे पहले मैंने अभी तक सिर्फ 400 के आसपास स्पीशीज़ जो हैं दिख चुका हूं, जिनको फ़ोटोग्राफ वीडियोग्राफ कर चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं, टारगेट रखा है कि सभी स्पीशीज़ को देख पाएँ अपनी लाइफ टाइम में जी। तो जर्नी और अच्छी हो जाती है जब आपके बेटर आपके साथ में हो और हर एक चीज़ में साथ दें। तो उनको भी इस चीज़ में रुचि बन गई है। तो आपने जब कहा बर्ड्स, तो एक तो उनकी चंचलता जो है वो ज़िंदा रखती है, दूसरा उनमें बहुत कलर्स होते हैं और बहुत स्मॉल साइज़ से लेके काफ़ी बिग साइज़ तक बर्ड हैं जो हमारे मतलब ह्यूमन के साइज़ से भी बड़े हैं। ओके। तो आप ये नहीं कह सकते कि बर्ड्स हमें से उड़ते हुए दिखते हैं, वो छोटे से होते हैं उनमें। तो इनमें भी बहुत सारी वैरायटी है। अगर हम स्मॉल बर्ड से लेके बहुत बड़े बर्ड्स की बात करें, जैसे लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है हमारा सारस क्रेन है, हमारे दिल्ली में बहुत पाए जाते हैं, दिल्ली के आसपास बहुत जगह पे पाए जाते हैं। जी। तो बर्ड्स में रुचि कॉलेज टाइम से आनी शुरू हुई थी। हॉस्टल में रहते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था मैं। तो वहाँ आसपास बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ बहुत अच्छे से बर्ड्स दिखते थे। सुबह उठते थे 5-6 बजे तो बाहर देखते तो बहुत बर्ड्स दिखते थे वहाँ पे। तो वहाँ से मतलब ये इंटरेस्ट आना शुरू हुआ बर्ड्स में और ये कम नहीं हुआ, बढ़ता ही रहा और मुझे लगता है ये बढ़ता ही रहेगा। जी बिल्कुल, बढ़ता ही रहे। आपने अपनी इस किताब के बारे में जिक्र किया, इसके बारे में हमें कुछ बताएं और कितने पक्षी इसमें डॉक्यूमेंटेड हैं? ये बेसिकली एक्सक्लूसिव बुक है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के ऊपर है। तो इसमें इसका नाम भी मैंने नेचर एट द बेस्ट ही रखा है। तो जब इसका नाम रख रहे थे तो नेचर एट द बेस्ट में पहले नाम में आया कि नेचर एट इट्स बेस्ट रखा जाए, क्योंकि बेस्ट के आगे इट्स लगता है। तो वाइफ सेड कि यार दा जो वर्ड है वो आना चाहिए इसमें, दा फिर हमने बेस्ट के आगे लगा दिया है, दा बेस्ट। तो इसमें बेसिकली जब ये बुक हम लिख रहे थे तो वी वर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन आइलैंड टू पोर्ट ब्लेयर, वी बोथ वर देयर विद माय सन। तो हम लोग सोच रहे थे आते आते रास्ते में कि यार अंडमान में हमने 2 साल 3 साल लगा लिए हैं, हमें कभी ऐसा नहीं मिला कि कोई बाहर से अंडमान के बारे में आता है, पूछता है हमारे से कि यार अंडमान में क्या है, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है जो दूर से देखा जाता है उसको। जी। तो हम यही बात करते आ रहे थे रास्ते में, तो कि ऐसा क्या किया जाए कि लोगों को ये क्वेश्चन हम आंसर करने की बजाय उनको एक बुक दे दें ऐसा कि वो हर एक क्वेश्चन का उनको आंसर कर पाए। जी। तो बोले ठीक है। हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफी तो हम करते ही थे, हम जब जिस दिन से अंडमान गए उस दिन से हम फ़ोटोग्राफी कर रहे थे अपना, कभी मोबाइल से कभी कैमरा से, जैसा भी मौका लगता था। तो बात करते करते बोले कि क्या लिखा जाए बुक में एकदम से, मतलब अगर बुक भी लिखना चाहते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए। तो आई सेड कि यार हम बाहर से देखते हैं, और ये हमारा डिस्कशन चल रहा है रास्ते में आते हुए कि हम बाहर से देखते हैं दुनिया में अंडमान कैसा दिखता है। तो हमने एज ए टूरिस्ट इमेजिन करना शुरू किया कि यार हम अंडमान में, सबसे ज़्यादा अंडमान में लोग ट्राइब्स को जानते हैं कि यार वहाँ पे कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं। जी। तो फिर हमने सोचा कि यार अंडमान में बहुत सारे आइलैंड्स होंगे,
देन आइलैंड्स के बाद आप सोचोगे अंडमान में यार बड़े सुंदर बीचेस है वहाँ पे, हम जाएंगे तो वहाँ पे फिर वो वाइट सैंड देखने को मिलेगा, नीले रंग का समुंदर देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आप जैसे अंदर घुसते जा रहे हो, क्योंकि हम तो घुस उसमें थे, तो हम उसमें घुस रहे थे अंदर कि हमने ये आइलैंड देखा, फिर बीचेस देखे, फिर वहाँ का फॉरेस्ट देखना शुरू किया कि यार यहाँ पर तो बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। फिर उसके और अंदर जब गए तो हमने देखा कि यार यहाँ की 2 तरह की बायोडाइवर्सिटी है। टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी जिसमें हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी आ जाएंगे, और मैरीन बायोडाइवर्सिटी जिसमें हमारा समुद्र के नीचे का सारा हिस्सा आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब आई तो साथ में ऐड हुआ कि यहाँ पे और इसके अलावा क्या है, वाटर स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे, ट्रैकिंग करने की जगहें हैं वहाँ पे, बर्ड वॉचिंग करने के लिए वहाँ पे जगहें हैं, गेम फिशिंग के लोग वहाँ पे आते हैं। इसके अलावा हेरिटेज वॉक है अंडमान, हमारा हिस्ट्री में काला पानी के नाम से सब लोग जानते हैं उसको, तो हिस्ट्री उसकी एक बहुत यूनिक हिस्ट्री है अपने आप में। तो जैसे जैसे सब चीज़ों को देखा तो वी स्टार्टेड डूइंग चैप्टराइजेशन, कि जितनी बातें हमने की हैं अगर हर एक के ऊपर हम एक चैप्टर बना देंगे और उसका जो मेन कंटेंट है वो रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इट विल बी शोन एवरीथिंग इन द टर्म्स ऑफ फोटोग्राफ्स विद स्मॉल इन्फॉर्मेशन टू दी जनरल पब्लिक। जी। तो वो हमें भी नहीं पता था कि हम ये बुक इतना ये ऐसा कोई बुक बना देंगे। तो धीरे धीरे कुछ दिनों में हमने उसको एक फॉर्म में ले आए और अपनी सारी फ़ोटोग्राफ्स को सॉर्ट आउट करना शुरू किया। जो कुछ कमी लग रही थी वो दोबारा से उसको लेने की ट्राई किया फ़ोटोग्राफ्स को, और एक कंपाइल करके हमने इसको बुक बनाया। तो आपकी जो किताब है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नेचर एट द बेस्ट या नेचर एट इट्स बेस्ट, जैसे भी आप इसको समझे, इसमें स्कूबा डाइविंग का भी आई थिंक यू डू स्कूबा डाइविंग ऑल्सो, क्योंकि अंडर वाटर के पिक्चर्स भी हैं इसमें ऑफ स्टार फिशेस, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मरीन लाइफ। तो इसमें आपकी आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा है? इससे पहले इसके बारे में कुछ नहीं पता था जी कि पानी के नीचे भी इतनी सुंदर लाइफ होती है। कभी कभी किसी मूवी में देखा, एक बार वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी में भी एक सीन आता है कि वो पानी में जंप करते हैं यार, तो तब उसका मायना नहीं पता था। बाद में समझा कि वो उस मूवी के उस सीन का क्या मतलब था, जब खुद जाके पानी में जंप करके नीचे डाइव करके देखा। तो अंडमान एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूबा डाइविंग के कोर्सेज भी करवाते हैं लोग, और वहाँ पे बहुत अच्छी मैरीन लाइफ भी है, बहुत अच्छी कोरल रीफ्स भी हैं वहाँ पे। तो पहली बार जब किए तो वो स्टार्टिंग में आपको 6 मीटर तक लेके जाते हैं पानी की डेप्थ में। तो आपने देखा कि यार कुछ अच्छे फिशेस दिख रहे हैं वहाँ पे, कोरल बड़े अच्छे दिख रहे हैं, कलरफुल हैं, अलग लाइफ है। मतलब वो सोचा नहीं था कि नीचे भी पानी में ये सब होता है। तो उसमें फ़र्स्ट टाइम जो वही बर्ड्स वाली कहानी है, जब फर्स्ट टाइम गए तो इंटरेस्ट, वो सेकंड टाइम में उससे ज़्यादा इंटरेस्ट, तो मतलब इंटरेस्ट बढ़ता गया उसमें। तो जब भी मौका लगा डाइव करने का वहाँ पे अंडमान में रहते हुए, तो उसको नहीं छोड़ा, और हर टाइम कुछ नया देखने को मिला। और नया भी ऐसा देखने को मिला कि पिछली बार भूल जाते थे, वो आगे वाला सीन याद रहता था उसमें। तो अच्छी जगह है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए, अंडर वाटर हो चाहे अबव वाटर हो, दोनों तरह के। आकाश भी एक्सप्लोर कर लिया, थल भी एक्सप्लोर कर लिया, और समुद्र के अंदर भी एक्सप्लोर करने को आपको मिला जी। वेल, अगर वापस से पक्षियों के बारे में बात करें तो व्हाट मेक्स अंडमान अ वेरी आइडियल स्पॉट फॉर अ लॉट ऑफ बर्ड्स, और कितनी स्पीशीज इस वक्त हैं अंडमान में अभी? आपने पहला सवाल किया कि अंडमान बर्ड्स के लिए क्यों स्पेशल है। तो देखिए, अंडमान और निकोबार जो दोनों आइलैंड हैं वो डिफरेंट बायोजियोग्राफिक रीजन्स के साथ मैच करते हैं। अंडमान जो है वो इंडो चाइना बायोजियोग्राफिक रीजन से मैच करते हैं, और जो निकोबार है वो इंडो मलाया बायोजियोग्राफिक रीजन से मैच करते हैं। अंडमान, पूरे अंडमान यूटी की हम बात करें तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 9 नेशनल पार्क्स हैं और मोर देन 90 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। और इन दोनों के अलावा वहाँ पे बायोस्फीयर रिज़र्व भी है, जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व है हमारा। तो इसमें नेचुरल सी बात है, जब इतनी सब चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी होगी, तो बर्ड्स का स्थान उसमें नंबर 1 पे आ जाता है। अंडमान जो रीजन है वो एंडेमिक फ्लोरा में आता है, एंडेमिक बर्ड्स एवियना फ्लोरा में आता है वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो, जिसमें से बहुत सारी इम्पोर्टेंट बर्ड एरियाज़, एक IBA नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें IBA एरियाज़ देखे जाते हैं। तो अंडमान इटसेल्फ हैविंग
more than 15 IBA areas, important bird areas. तो ये सब चीज़ें बाद में आती है अगर बर्ड्स होंगे तो, इसलिए उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है. राइट. तो वो जो अंडमान है वहाँ पे विंटर माइग्रेंट्स आते हैं, क्योंकि विंटर में वो एक बहुत सेफ हेवन है फॉर ऑल विंटर माइग्रेंट्स. मेडिटेरियन से आते हैं, यूरोप से आते हैं, नॉर्थ से आते हैं. सेकेंडली समर माइग्रेंट है, क्योंकि वहाँ पे वेदर हमेशा अच्छा रहता है, एक यूनिक टाइप का आइलैंड के साथ वेदर जुड़ा होता है, तो समर माइग्रेंट भी बढ़ जाते हैं वहाँ पे. बहुत अच्छे वेटलैंड्स हैं वहाँ पे, दैट गिव स्पेस टू मैनी वेटलैंड बर्ड्स. एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो आइसोलेटेड एरियाज हैं. आइलैंड्स आर आइसोलेटेड अदरवाइज, Right. बट अंडमान आर वेरी डिफरेंटली आइसोलेटेड. सो आइसोलेशन मेक देम यूनिक फॉर बर्ड्स. तो आइसोलेशन के कारण वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स वहाँ पे एंडेमिक हैं. अगर हम सिर्फ अंडमान की बात करते हैं तो अराउंड 400 स्पीशीज़ आर रिपोर्टेड इन अंडमान्स ऑफ बर्ड्स, जिसमें से 30 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एंडेमिक हैं ओनली टू अंडमान्स. और जिसमें अगर फर्दर हम बढ़ते हैं तो 21 स्पीशीज़ आर एंडेमिक टू ओनली अंडमान्स एंड 9 आर एंडेमिक टू निकोबार डिस्ट्रिक्ट. प्लस एंडेमिसिटी और बढ़ जाती है यहाँ पे. अराउंड 87 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अंडमान में एंडेमिक सब स्पीशीज़ लेवल पे एंडेमिक हैं अंडमान में, विच इज़ हाईएस्ट इन इंडिया अदरवाइज. तो अगर हम टोटल अंडमान का देखें तो दैट इज़ अराउंड 0.2% ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया का लैंड मास जो है वो अंडमान में आता है. ओके. और 0.2% इज़ कैटरिंग 17% ऑफ एंडेमिक बर्ड्स. दैट्स अ ह्यूज नंबर. ह्यूज नंबर. पूरे इंडिया में हमारे 170 प्लस स्पीशीज़ एंडेमिक हैं, जिसमें से 30 हमारी एक छोटी सी यूटी में अंडमान में है. तो आपको लगता है ये जो आइसोलेशनिज्म है इसके वजह से Yes. नेस्टिंग इज पॉसिबल Yes. फॉर द बर्ड्स, और टूरिज्म और नेस्टिंग ऑफ बर्ड्स ये किस तरीके से दोनों जो हैं सर्व होती हैं? टूरिस्ट जो अंडमान में आता है उतना बर्ड वॉचिंग के लिए शायद नहीं आता है. बहुत कम लोग बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, लेकिन आने चाहिए लोग. वहाँ पे अच्छी एंडेमिसिटी है. टूरिज़्म का बहुत डिफरेंट एंगल है वहाँ पे, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा. अगर बर्ड्स की हम बात करें तो बर्ड वॉचिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे थोड़ी सी डेंसिटी हमें एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ ज़्यादा मिल जाती है. जैसे कुछ वेटलैंड एरिया हैं, वेटलैंड्स में क्या है कि आप सीजनल माइग्रेशन होती है वहाँ पे, तो वेटलैंड एरिया में बर्ड्स बढ़ जाते हैं. सिमिलरली कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने ही हमारे लोकल जो वहाँ पे एक अंडमान एवियन क्लब भी है, एक वहाँ पे लोकल लोगों ने बनाया हुआ है, वो उन लोगों ने कुछ स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रखा है जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको एंडेमिक बर्ड्स ज़्यादा दिखने के चांसेस रहते हैं. एंडेमिक सब स्पीशीज़ भी बर्ड वहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं. और कुछ वेटलैंड एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको माइग्रेंट्स जैसे जो वाटर बर्ड्स होते हैं, वेटलैंड बर्ड्स होते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं. तो विद टूरिज़्म मैं उसके साथ कंपेयर या उसके साथ अटैच नहीं करना चाहूँगा इसको, बट इट इज़ ए बिग प्लेस फॉर बर्ड वॉचिंग. जैसे जी. एक बहुत यूनिक बात है यहाँ पे, अभी दो वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है. देयर आर 2 स्पेशल बर्ड्स इन अंडमान जो हर एक बर्ड वॉचर का या ऑर्निथोलॉजिस्ट का एक ड्रीम होता है कि मैं उनको देखूँ. वन ऑफ देम इज़ नारकोंडम हॉर्नबिल, अनदर वन इज़ योर मेगापोड. मेगापोड इज़ इन ग्रेट निकोबार, कैम्बल वे में दिखने को मिलता है. और नारकोंडम हॉर्नबिल जो है वो सिर्फ एक ही आइलैंड पे होता है वर्ल्ड में, दैट इज़ एंडेमिक टू नारकोंडम आइलैंड ओनली. किसी टाइम पे वोल्केनो होता था, अभी एक्सटिंक्ट हो गया है वो. तो उस आइलैंड पे बहुत हाई डेंसिटी है नारकोंडम आइलैंड पे नारकोंडम हॉर्नबिल की. तो ये दोनों बर्ड देखना बहुत सारे लोगों का एक मतलब ड्रीम होता है कि हम इनको देख पाएँ. जी जी. आई वाज लकी टू सी both of the birds. तो आपके वीडियो ने हॉर्नबिल को तो कैप्चर कर रखा है, जी, प्लस जी. अदर बर्ड्स लाइक द वुडपेकर, कॉकल, स्टारलिंग, टील, बुलबुल, क्रेक. सो ये जो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं इन दिस मैनर, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ अ सिविल सर्वेंट जो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में सर्व कर रहा है, एंड ऑल्सो इन द कॉर्नर ऑफ देयर हार्ट एंड माइंड दे आर परस्यूइंग दिस प्रोफेशन? सी स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग, बट कभी मिल जाती हैं चीज़ें. तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो किसी भी जगह की होती हैं, उनको अगर डॉक्यूमेंट करते हैं तो लोगों को देखने को मौका मिलता है. हर एक बंदा तो वहाँ नहीं जा सकता है, हर एक बंदा बर्ड वॉचिंग नहीं कर सकता है, हर एक बंदा हर एक चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर सकता है. कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलर काम के साथ साथ अपनी हॉबी को बना के चलते हैं, जिसमें हमने वो
एक मूवी भी देखा होगा, किक जिस चीज़ से मिल जाता है, जी तो यूज़ टू गेट दिस किक फ्रॉम दी बर्ड वॉचिंग की। तो जब भी आपका वो ऑफिस का जो प्रोफेशन का जो है उसको कहीं बैलेंस करने के लिए आपको पैशन चाहिए, तो वो ये बर्ड वॉचिंग मेरे को दिखा। तो मेरा बेसिक पर्पज़ इसको डॉक्यूमेंट करने का या दिखाने का लोगों को यही है कि ये सब चीज़ें भी होती हैं जी हमारी भागदौड़ की लाइफ में। मतलब सब लोग डेली निकलते हैं, ये कुछ सुकून की चीज़ें भी हैं जो हमें मतलब अपनी रूटीन की लाइफ से हटके करनी चाहिए। इट इज समथिंग दैट यू डू फॉर योर ओन सेल्फ। यस। तो आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं और बर्ड वॉचिंग भी करते हैं। इसमें बहुत पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है, घंटों घंटों हैवी गियर्स के साथ वेट करना पड़ता है। तो वो पेशेंस कैसे डेवलप किया आपने? ये पेशेंस विद टाइम ही डेवलप किया। जब स्टार्टिंग में इसको लेके बर्ड वॉचिंग को लेके कहीं जाते थे तो कोई बर्ड दिखा नहीं दिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो देखा कि यार ये दिखा, उड़ के चला गया तो चला गया, अब दोबारा कभी आएगा तब देखेंगे। तो मतलब बैठते नहीं थे उसमें, 10 मिनट लगाए, आधा घंटा लगाया। टाइम कंस्ट्रेंट है आपके पास, आपको ऑफिस जाना है, आपको बाकी चीज़ें भी बैलेंस करनी है। बट जैसे एज ए हॉबी और पैशन चीज़ें डेवलप हो जाती हैं तो कई बार मुझे लगता है कि पेशेंस एकदम से नहीं आती है, पेशेंस भी ग्रो करती है साथ साथ में। तो जैसे जैसे पैशन बढ़ता रहा इसका, इसमें और डेप्थ में जाते रहे तो ये पेशेंस भी साथ में आती गई। जैसे आपने कहा घंटों घंटों वेट करना पड़ता है कई बार, तो पहले तो लगता था कि नहीं करेंगे, लेकिन अब लगता है कि अगर वो फलाना वर्ड आ रहा है या आ सकता है या यहाँ पे आता है तो पेशेंस उसके सामने कुछ भी नहीं दिखता है, बैठे रहते हैं, बैठना पड़ता है। तो जब छुट्टी का दिन मिल जाता है कभी वीक में या 2 वीक्स में या 3 वीक्स में, या फिर संडे कभी मिल गया है, तो बहुत सारे हमारे क्लब्स ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिनमें लोग बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम ये चीज़ भूल के शेयर करते हैं कि सिर्फ मैं ही देख पाया हूँ, कोई और ना देखे। ऐसा नहीं होता है। जी हम लोगों को होता है कि यार अगर मैंने देखा है तो हो सकता है कि मेरे साथ वाला बंदा उससे ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफ ले पाए, तो हम लोग उसको और इन्जॉय करेंगे। बिल्कुल। तो वो पेशेंस का एक पार्ट बन गया है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है आपके पास। मान लीजिए आपने बर्ड वॉचिंग गए, आपने देखा कि वहाँ पे अभी ये बर्ड दिख रहा है, तो एक चीज़ श्योर हो जाती है कि उस एरिया में वो बर्ड अभी घूम रहा है। ओके। तो आपको किसी ने देखा, तो ज़रूरी नहीं कि जब आप जाके वहाँ पे बैठेंगे या देखने जाएंगे आपको दिखेगा, किसी ने तो देखा होगा। बिल्कुल। तो जब वो यू गेट द इन्फॉर्मेशन तो आप वहाँ पे जाते हैं। फिर आप एक उम्मीद के साथ वहाँ पे पेशेंसली वेट करते हैं कि यार कल मेरे साथी ने देखा था तो आज मुझे भी देखने का मौका मिल जाएगा। जी तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो भी बहुत बार हमें मतलब पेशेंस की तरफ ले जाती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेशेंस के अलावा यू ऑल्सो हैव टू नो हाउ टू यूज योर फोटोग्राफी इक्विपमेंट। कौन सा कैमरा आप यूज करते हैं ऑन लैंड एंड इन द सी? लैंड पे मैं निकॉन Z9 है अभी वो यूज़ करता हूँ, 400 mm के साथ यूज़ करता हूँ जो टेली फोटोग्राफी के लिए है। और सी में मैंने जब अंडमान में था 1.5 साल पहले मैं यहाँ पे आया हूँ, तो तब तक मैं हीरो 9 यूज़ करता था। दैट इज़ GoPro कैमरा है जो वो अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा है। उसमें जूम थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि पानी में जब आप नीचे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा जूम चाहिए होता है। आप डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाते कि आपका कितना डिस्टेंस सी एनिमल के साथ है आपका उस टाइम पे। जी। तो जब आपने कोई ऐसा बर्ड देखा, जैसे आपने 2 पक्षियों की बात करी, तो उस समय फीलिंग क्या रहती है? ओके, दिस इज़ द बर्ड जो बहुत लोगों का ड्रीम होता है देखना, और वो बर्ड जब आपने देखा तब आपको कैसा लगा? एक बर्ड फोटोग्राफर के लिए उसका ड्रीम दिख जाए तो मतलब उससे ऊपर उसके लिए कुछ नहीं होता उस टाइम पे। बिल्कुल। तो नागोंडम हॉर्नबिल जब हमने देखा था तो ऐसा लग रहा था कि यार आधी लाइफ जी ली है, आधी बची है तो कुछ और शायद कोई दिखेगा तब जी जाएगी। तो इट वाज ए यूनिक एक्सपीरियंस ऑन दैट डे, ऑन दैट टाइम। फर्स्ट टाइम देखा कि यार ये मतलब ऐसे खड़े हो गए कि यार ये इसको देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं इसको। तो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑन दैट डे वाज। एंड एक और बर्ड है वहाँ पे अंडमान क्रेक, वो वीडियो में भी देखा आपने। अंडमान क्रेक मतलब बहुत सारे बर्ड्स का ड्रीम होता है कि अंडमान में जाएं और क्रेक दिख जाए। बहुत कम दिखता है, बहुत शाई बर्ड है, बहुत इजीली नहीं दिखता है। तो हम लोग बर्ड फोटोग्राफी पे गए हुए थे, संडे था तो हम फोटोग्राफी कर रहे थे। तो आई वाज जस्ट स्टेइंग एंड वो मेरे साथ ऐसे पास में घूम रहा था, बिल्कुल पास में। तो मैंने उसको उससे पहले नहीं देखा था, सिर्फ फ़ोटोज़ में देखा था। एवियंस क्लब भी के मेंबर भी हमारे साथ में थे। तो
बोले सर बिल्कुल स्टिल हो जाओ, और इशारे में वो मुझे बता रहा है। मैं स्टिल हो गया, मैं कुछ समझा नहीं। तो उसने मेरे को नीचे देखने के लिए बोला, मैंने नीचे देखा। उसके बाद फिर मैं वो सांस ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली बात होती है, तो वो हो गई कि ये कैसे पास में आ सकता है इतना। तो उसने बोला सर आप यहीं रहो। इतना अच्छा दिन था वो, हमने मोबाइल से उसकी फ़ोटोग्राफ्स लिए कि ये इतने पास से भी, वो मतलब इससे वेरी रेयर डे जब कभी ऐसा कभी मौका आता है। तो यही कहूँगा इसमें तो मैं आपके। तो आपका पैशन क्लियरली इज बर्ड्स। कोई इन्फ्लुएंसेस रहे हैं आपके, लाइक ऑर्निथोलॉजिस्ट? पिछली बार हमारे साथ बिक्रम ग्रेवाल जी जुड़े हुए थे, सलीम अली इज अ वेरी वेल नोन ऑर्निथोलॉजिस्ट। एनी सच इन्फ्लुएंस? सही बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुद को ही अच्छा लगता है। मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, मैंने फार्मा किया है, तो काफ़ी चीज़ें उसमें हम लोग पढ़ते थे, इसके बारे में भी, जियोलॉजी के बारे में काफ़ी चीज़ें आती थी। तो वहीं से कहीं से मुझे लगता है कि कभी आया होगा, जिसको मैं बहुत अच्छे से रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर या जिसको मैं फॉलो करता हूँ कि इस मुकाम तक मुझे जाना है, ऐसा नहीं रहा कभी भी। मुझे खुद से अच्छा लगता है और फ़ोटोग्राफ़ी अच्छा लगता था, और उसमें बर्ड्स अच्छे लगते हैं तो बर्ड्स की फ़ोटोग्राफ़ी करते रहते हैं। जी, वेल विद दिस थैंक यू सो मच विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अंडमान घुमाने के लिए, यहाँ बैठे बैठे और इतने सुंदर सुंदर बर्ड्स दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। Well, it's not only the Andaman Islands that we got to experience with our guest Vinay Kumar Jindal ji, also the Nicobar Islands. We got a taste of that as well. राइट, और निकोबार तो जहाँ पहुँचना ही इतना मुश्किल है, तो वहाँ पहुँच तो नहीं सकते, मगर वहाँ के पक्षी हमने आज ज़रूर देख लिए। Absolutely, and I'm sure our viewers also enjoyed that interview with Vinay Kumar Jindal ji. The passion really of bird watching, and more importantly how important birds are to the environment as well. एब्सोल्युटली, और बर्ड्स से बहुत कुछ सीख भी मिलती है। कल जैसे हमारी विनय जी से बात हुई थी दैट हाउ इम्पॉर्टेंट, जब आप उनको क्लोजली देखते हैं, खासकर जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, तो बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी हैं जो हमें बर्ड से मिलते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, पेशेंस हमें सीखने को मिलती है जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करी तो आइए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट शॉट बाय चांस में। डीडी मॉर्निंग शो के शॉट बाय चांस सेगमेंट की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। इसका प्रमाण है हमारे पास इस सेगमेंट के लिए भेजे जाने वाले ढेरों फोटो और वीडियो। सबसे पहले नोएडा के यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शौर्य प्रताप बिष्ट द्वारा भेजे गए ये फोटो हैं। पहले फोटो में 2 चीतल हिरण एक साथ कैमरे की ओर देख रहे हैं। दूसरे फोटो में पानी के अंदर ये बाघ है जिसके एक कान से खून बह रहा है। तीसरे फोटो में एक बाघिन कैमरे में देखते हुए अपनी नाराजगी जता रही है। और ये फोटो भेजे हैं भोपाल से डॉक्टर अनिमेश सक्सेना ने। पहले फोटो में एक पर्पल सनबर्ड फूलों से पराग ले रहा है। दूसरे फोटो में एक गिद्ध उड़ान भर रहा है। तीसरी फोटो में एक बाघ झाड़ियों से कैमरे की ओर देख रहा है। इन सभी फोटोज को भेजने के लिए हम दूरदर्शन की ओर से शौर्य प्रताप बिष्ट और डॉक्टर अनिमेश सक्सेना का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। यदि आपके पास भी जंगल में लिया गया कोई दुर्लभ फोटो या वीडियो है तो आप हमें इस एड्रेस पर मेल कर सकते हैं ddmorningshow23@gmail.com। Well, thank you to all our viewers for contributing to our shot by chance। अर्जुन, दिन ब दिन हमें इतनी सारी फोटोज मिल रही हैं और आज तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है बर्ड्स का और एनिमल्स का। Well, Saurya Pratap Bisht, I sensed just looking at his photograph that the telescopic lens is bigger than him. We have today's theme is youngsters as they're getting into the dance form of Odissi, now into photography as well, but that's all about passion and pursuing it, and parents play such an important role there. And the other by Dr. Animesh Saxena, I felt the takeoff by the vulture
is certainly the photograph of the day. I really like the one जहाँ पे दो चीतल डियर्स एक साथ खड़े हैं. That was also a very nice picture. खासकर हमने जब बात की थी पेशेंस में, हमने शौर्य की पिक्चर्स देखी तो एक फ़ोटो क्लिक करने में बहुत समय लगता है. तो शौर्य एज अ किड इज़ वेरी यंग फोटोग्राफर. तो कितना समय जब वो यंग एज से डेवलप होने लगता है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जंगल में रह के. अर्जुन, And depending upon the sanctuary, wildlife sanctuary, spotting a tiger is also a challenge. उसमें दो photographs हैं, एक फीमेल टाइगर्स का है और एक मेल टाइगर का भी है.